Hello and welcome to Wisdom Commerce classes. Today's lecture is on SP. Today we are going to start with the fifth chapter in the syllabus, that is deposits. Deposits. We already know what is deposits, what is acceptance of deposit. Yes or not? Deposit is different and acceptance of deposit is different. It means acceptance deposit means public or members of the company deposit their money with the company for a short period of time. In return, what they get? In return, they get an interest. In a short form, it is also called as term loan. After maturity, company को loan repay करना पड़ता है and also pay timely interest to the depositors. So you understood what is the meaning of acceptance of deposits. It is a kind of a money which is deposited to the company for a fixed period of time. Yes, it is kind of a loan. So now first we will see what are companies, which companies are eligible to collect such kind of deposits from the public, and what type of companies cannot accept such kind of deposits. Yes. So let's start with the four types of companies that cannot accept the deposits. कैसा डिपॉजिट? पब्लिक से वो डिपॉजिट पैसा नहीं ले सकते. कौन? कंपनी. ऐसी कौन से टाइप की कंपनी है? लेट्स सी दैट. The first one is banking company. The first one is banking company. The second one is non-banking company, that is NBFC. The third one is housing finance company. Housing finance company. The fourth one is any other company which is mentioned in section 73 to 76 of Companies Act 2013. Companies Acceptance of Deposits Rule 2014 and directives issued by RBI regarding issue of deposits. ये सारे में जो कंपनीज आती है वो भी ये टाइप ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती. आई होप यू आर क्लियर विद दिस फोर टाइप्स ऑफ कंपनीज. ये तो वो कंपनीज है जो बिल्कुल डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. नाउ वी विल सी द कंपनीज दैट कैन accept the deposits and from whom they can accept the deposits. So first let's go through the chart so that you are clear what is exactly we are going to study ahead. Yes. So from members, वो कंपनीज है जो सिर्फ अपने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. फ्रॉम मेंबर्स के नीचे क्या है? फ्रॉम मेंबर्स वो कंपनीज है जो सिर्फ अपने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. एंड फ्रॉम पब्लिक वो कंपनीज है जो जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. यू कैन सी इन द चार्ट. यस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना तो है, ऐसे ही थोड़ी हो सकता है. ऐसे ही हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. Company has to follow lots of rules and regulations while doing all this acceptance. But बहुत सारे terms and conditions भी होते हैं. So we will see these terms and conditions. There are 20 types of terms and conditions. उन सबको follow करना पड़ता है तभी public से deposits ले सकती है company. Now we will see that each term and conditions, each one in detail. The first condition is amount of deposits. ऐसे नहीं है कि कंपनी जितना चाहे उतना डिपॉजिट ले सकती है. देयर इज अ लिमिट टू इट. वो लिमिट कैसे डिफाइन होगी? लिमिट डिफाइन करने के लिए कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व निकाला जाता है. पहले हम ये दोनों के मतलब समझ लेते हैं, देन वी कैन सी व्हाट. किसका मतलब? टोटल पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स. सो द फर्स्ट थिंग इज पेड अप शेयर कैपिटल कैसे समझता है? व्हाट इज दिस? किसी को याद है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो सारे शेयर होल्डर्स ने अब तक कंपनी को पे किया हो. याद आया कुछ? प्रीवियसली हमने कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ. अगर कंपनी ने मार्केट से, आई विल गिव एन एग्जांपल टू इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. अगर कंपनी ने मार्केट से 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं एंड उसमें से पब्लिक ने 9 लाख के शेयर्स खरीद लिए हैं,
पब्लिक ने कितने 10 लाख के शेयर इशू किए और पब्लिक ने कितने खरीदे 9 लाख में। उसमें से भी पब्लिक ने अब तक 7 लाख की ही पेमेंट किया है कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने उतना ही कैपिटल मांगा है अब तक पब्लिक से। तो कितना पे किया है पब्लिक ने 7 लाख। तो अब वो जो 7 लाख रुपए है दैट इज व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो पब्लिक ने पेड कर लिया है शेयर के लिए उसे हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। इट इज 7 लाख रुपीज। ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे कर दिया है। इट इज पेड अप, यस, समझा। सो नाउ इन द अदर टर्म्स व्हाट इज फ्री रिजर्व? अगर कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा जमा हुआ है जो किसी को देना बाकी नहीं है, यस, जो किसी को भी नहीं देना, इट इज रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। तो वो उसे हम बोलेंगे फ्री रिजर्व्स बोला जाता है। द कंपनी इज फ्री टू यूज दिस रिजर्व्स एज पर द कंपनी नीड्स। आई होप यू आर क्लियर विद द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व्स, यस। सो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की लिमिट डिसाइड करने के लिए इन दोनों अमाउंट्स को ऐड किया जाता है। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का अमाउंट निकाला जाता है एंड देन सच अमाउंट का कुछ परसेंटेज डिसाइड होता है। उतना ही डिपॉजिट्स कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है। Yes, now you have understood what is paid up share capital, what is free reserves and how ये दोनों को ऐड करने से हमें परसेंटेज मिलता है कि कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट पब्लिक से खरीद सकती है। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। Now we will see which type of company can accept this kind of deposits. प्राइवेट कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के जितना अमाउंट अपने मेंबर से एक्सेप्ट करती है, यानी इट कैन बी एक्सेप्टेड 100% ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स। इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। वो मेंबर से ही ले सकती है। मेंबर्स कौन है? जो कंपनी के शेयर होल्डर है या जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, वही मेंबर से अपनी प्राइवेट कंपनीज उसे खरीद सकती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है, जो 100% से ज्यादा भी डिपॉजिट ले सकती है, बट इट शुड बी मेंशन्ड, यस, इट शुड बी प्रोवाइडेड दैट ये कंपनी खरीद सकती है 100% से ज्यादा। ये कहीं ना कहीं या प्रोस्पेक्टस या कहीं ना कहीं मेंशन करना जरूरी है। पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, ऐसी कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है, वो भी ओनली 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ये जो अमाउंट निकालते हैं उनका 25%, यस। कंपनी का पहले के डिपॉजिट्स, अभी के डिपॉजिट्स और फ्यूचर के आने वाले डिपॉजिट्स मिलाकर 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता, समझा। ऐसा नहीं अभी 25% ले लिया बाद में और 25% पहले का और 25% नहीं, ये टोटल मिला के 25% होना चाहिए। पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, वो अपने मेंबर्स से टोटल मिलकर सिर्फ 10% ऑफ द अमाउंट ले सकती है एंड जनरल पब्लिक से टोटल मिलकर 25% ऑफ अमाउंट ही डिपॉजिट ले सकती है, समझा। जो ले सकती है और जो नहीं ले सकती है वो दोनों के बीच में गवर्नमेंट कंपनीज है, वो 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक डिपॉजिट ले सकती है, समझा। प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट प्लेसमेंट, यस, ये तीनों डिफरेंट है एंड इट इज नेसेसरी फॉर यू टू रिमेम्बर ये तीनों के डिफरेंट फीचर्स, यस। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज व्हाट? पीरियड ऑफ डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट 6 मंथ से कम या 3 ईयर्स से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। दिस इज फिक्स्ड, ये हमेशा के लिए फिक्स है। 6 मंथ से कम नहीं हो सकता और 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ स्पेशल कंडीशंस में कंपनी 6 मंथ से कम टाइम के लिए डिपॉजिट ले सकती है, याद रखना, स्पेशल कंडीशंस। या फिर कभी कभी अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करे तो प्री मैच्योर प्रीपेमेंट भी हो सकता है, समझा। अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करे तो ही पेमेंट हो सकता है, दैट इज प्री मैच्योर। अगर कंपनी चाहे तो मैच्योर हो रहे डिपॉजिट्स को रिन्यू भी कर सकती है, सेम रिटर्न्स एंड कंडीशंस देकर डिपॉजिट्स रिन्यू कर सकती है। दे विल बी काउंटेड एज फ्रेश डिपॉजिटर्स, समझा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कंडीशन, दैट इज नो डिमांड डिपॉजिट्स। नो डिमांड डिपॉजिट्स, कंपनी ऐसा कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकती जो डिपॉजिटर जब मन चाहे तब डिमांड कर सकती है।
कंपनी ऐसा कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकती जो डिपॉजिटर जब मन चाहे तब डिमांड कर सके। हर डिपॉजिट का एक फिक्स टेन्योर होता है, उसी टेन्योर में वो पॉसिबल है। समझा? Now let's come to the fourth one, that is secured and unsecured deposits. कंपनी अगर चाहे तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ले सकती है। अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स है तो अपने असेट्स पर चार्ज क्रिएट करेगी या कुछ असेट्स साइड में रखने पड़ेंगे टू रिपे द डिपॉजिट्स। समझा? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। द फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी को डिपॉजिटर को एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। डिपॉजिटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है वो उसका ही है, वो किसी से लोन लेकर नहीं दे रहा। अगर किसी से लोन लेकर ये पब्लिक उसे डिपॉजिट करने के लिए कंपनी को नहीं दे सकती। यस, द सिक्स्थ वन इज जॉइंट नेम्स। कंपनी 3 से कम लोगों के जॉइंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, यानी एक डिपॉजिट में 3 लोग हो सकते हैं तो कंपनी भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, पर लोन लिए हुए पैसे डिपॉजिट नहीं लेगी। सॉरी। द सेवेंथ वन इज नॉमिनेशन। हर डिपॉजिटर अपने नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं, नॉमिनी नॉमिनेट कर सकते हैं। डेथ होने के बाद या वॉट एवर द अदर प्रॉब्लम्स आर, अगर उस इंसान को कुछ हो गया तो उसके पीछे ये पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को, पर उसका नाम एप्लीकेशन फॉर्म में एज नॉमिनी होना जरूरी है। 8 वन इज सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। अगर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले रही है तो सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा। अगर जनरल पब्लिक से पैसा ले रही है तो एडवर्टाइजमेंट इश्यू करेगी। समझा? सर्कुलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे पॉसिबल है? इस सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट ये क्या कंटेंट होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये कंटेंट होना चाहिए या तो फिर स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इन फ्रेश इशू, क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ द स्कीम होनी चाहिए, नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टीज होने चाहिए, प्रीवियस डिपॉजिट्स करने वालों को कितना पैसा देना बाकी है, ये सब भी चीजें मेंशन होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ द पब्लिक टू नो कि कंपनी कौन से पोजीशन पर है आज की तारीख में। ये सारी डिटेल्स कैरी करने वाले ही सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के 30 डेज के बाद सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को इश्यू किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी रीचेक करेगी कि कंपनीज ने सारी चीजें इंफॉर्मेशन सही डाली है या नहीं। देन ओनली आफ्टर 30 डेज ये चीज आपको एडवर्टाइजमेंट में पब्लिक को मिलेगी। समझा? मेंबर्स को सर्कुलर पोस्ट या ईमेल से भेज सकते हैं। मेंबर्स को सर्कुलर पोस्ट या ईमेल से ये सारी चीजें भेज सकते हैं। जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए एटलीस्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब जो होम टाउन में जो लैंग्वेज चल रहा है उस लैंग्वेज के पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। ये एडवर्टाइजमेंट कब तक वैलिड है? जो साल में इशू हुआ है, जिस साल में ये चीज इशू हुई है वो पूरा साल तक ये चीज वैलिड है, ये एडवर्टाइजमेंट वैलिड है। नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ्स तक या फिर फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी उस डेट तक वैलिड रहेगा। यस, समझा? 9th वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अगर कंपनी को सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो 1 और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। ट्रस्टीज कैसे अपॉइंट होंगे? बाय साइनिंग अ ट्रस्ट डीड बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द कंपनी। ट्रस्ट डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 7 डेज पहले तक ट्रस्ट डीड साइन हो जाना चाहिए। ट्रस्टीज डिपॉजिटर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कंपनी डिपॉजिट रिपे नहीं कर सकी तो ट्रस्टी सारे डिपॉजिटर्स की एक मीटिंग बुला सकते हैं। इस मीटिंग में दे विल डिसाइड कि आगे क्या करना है, पैसे कैसे रिकवर करने हैं। समझा? नाउ द 10th वन इज क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 30 डेज के अंदर कंपनी है तो क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स करती है। कंपनी है तो क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स करती है, यानी उतना असेट्स डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में ट्रांसफर करने होंगे। कितने असेट्स पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा? जितने अमाउंट का डिपॉजिट लिया है।
उतने अमाउंट के असेट्स पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। यस, यू गॉट द पॉइंट क्लियर? कितने चार्ज पे असेट्स होगा, कितने चार्ज पर असेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यस, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस ले सकती है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस में जो अमाउंट कवर्ड है उतना कम असेट्स लगेगा। जो अमाउंट इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है सिर्फ उतने ही असेट्स पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। समझा? Now let's come to the 11th one, that is deposit insurance. अगर कंपनी को 20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट्स लेना है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इश्यू करने के 30 डेज पहले ही इंश्योरेंस क्लियर रखना पड़ेगा। समझा? डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब इट इज वेरी इजी। द 12th वन इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। हर कंपनी को अपने डिपॉजिट्स की क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है। कैसे करेंगे? इधर फिर सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। क्रेडिट रेटिंग एवरी ईयर डिपॉजिट्स की क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है so that they can inform to the public through advertisement and circular. The 13th one is open deposit repayment reserve account. हर कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए किसी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर जितना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है उसका एटलीस्ट 15% उस अकाउंट में 30th अप्रैल तक डालना पड़ेगा। ये अकाउंट सिर्फ डिपॉजिट रिपेमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। द कंपनी कैन नॉट यूज दिस अकाउंट फॉर एनी अदर ट्रांजैक्शंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 14th वन, दैट इज डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसीव करने के 21 डेज में कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करना पड़ेगा। डिपॉजिट्स हैज टू साइन बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिसिप्ट में क्या क्या होगा? नेम, एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट मेंशन, ये सारी चीजें वो रिसिप्ट में मेंशन होगी बिकॉज इट इज लाइक अ प्रूफ फॉर द डिपॉजिटर एंड फॉर द कंपनी। Now let's come to the 15th one, that is registrar of deposits. कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें डिटेल्स ऑफ ऑल डिपॉजिटर एक्सेप्टेड विल बी रिकॉर्डेड। डिपॉजिट्स रेसिप्ट इशू करने के 7 डेज में ही उसकी एंट्री रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिटर में हो जानी चाहिए। कितने डेज में? 7 डेज में रजिस्ट्रार ऑफ डिपॉजिट की। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 16th वन, दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी को हर साल 30th जून के पहले रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। उसमें से 31 मार्च तक कंपनी के पास कितना डिपॉजिट है उसकी पूरी डिटेल्स मेंशन होती है। समझा? दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। द 17th वन इज इंटरेस्ट। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखी होगी। अगर कंपनी रीपेमेंट कर रही है तो जो मेंशन इंटरेस्ट है उसमें से 1% डिडक्ट करके पे कर सकती है। अगर लेट पेमेंट है तो 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर ओवर ड्यू पीरियड। समझा? द 18th वन इज राइट टू ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार सर्कुलर इश्यू हो गया एंड डिपॉजिट्स कलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं हो सकते। डिपॉजिट्स के भी नहीं, ट्रस्ट डेट के भी नहीं, इंश्योरेंस के भी, किसी के भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं हो सकते। The 19th वन इज डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स लिखकर मेंशन करना पड़ता है कि डायरेक्टर से कितने फंड्स रिसीव हुए हैं। वो सारी चीजें इस चीज में मेंशन होगी। द लास्ट एंड द फाइनल वन इज पनिशमेंट। अगर कंपनीज एक्ट से कोई भी प्रोविजन का वायलेशन हुआ है तो कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को फ्रॉड केस में पनिशमेंट हो सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999 में कुछ एडिशनल प्रोविजंस भी डाले हैं। कंपनीज इन महाराष्ट्र हैव टू फॉलो दोस एडिशनल प्रोविजंस आल्सो। यस, तो यहाँ तक हमने क्या देखे? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और वो भी सारी चीजें देख लिए जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है इफ दे वांट टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स।
Yes, अब हम पढ़ेंगे and I hope you are clear with all these points. Yes, now let's move forward and we will study डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो 15 स्टेप्स का ये प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना पड़ता है। Yes, so let's see all the 15 points in each one in detail. Yes, the first one is hold board meeting. सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए रिजोल्यूशन पास होगा। डिपॉजिट से रिलेटेड सारी डिटेल्स भी उसमें फाइनलाइज होगी, जैसे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स, कंडीशंस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगी। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए जनरल मीटिंग की डेट फाइनलाइज भी होगी। यस, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप। द सेकंड स्टेप इज होल्ड जनरल मीटिंग. Company will hold a general meeting with all the shareholders to get approval from all the shareholders for accepting all the deposits. अप्रूवल मिलने के बाद स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करेगी। A copy of this special resolution will be filed with the Registrar of Companies and RBI. This was the second point. Now let's come to the third step. एक और बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट फाइनलाइज होगा। गाइडलाइंस के बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करेंगे। ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Yes, that is why the meeting has been called, obviously. Now let's come to the fourth point, that is appoint banker. Company एक banker appoint करेंगी जिसमें applicants will submit their forms and application money. Yes, public direct company में नहीं भेज सकती। Public ये banker जो banker appoint किया गया है, public को सारे deposits के applications उसे देगी। Now let's come to the fifth point, that is obtain credit rating. जैसे मैंने previously बताया, credit rating obtain करना बहुत जरूरी है because this all has to be mentioned in the advertisement and in the circular. Sixth point is appoint deposit trustee. Company deposit trustee को appoint करेगी by signing a trust deed, as we have seen the earlier also. The seventh one is take deposit insurance. कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 30 days बिफोर द एडवर्टाइजमेंट। यस, नाउ लेट्स कम टू द 8th पॉइंट, दैट इज फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन द रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के 30 days के बाद ही जनरल पब्लिक के लिए ये पब्लिश कर सकती है। जैसे मैंने बताया, रजिस्टर ऑफ कंपनी देखेगी कि कंपनीज कोई फ्रॉड नहीं कर रही है एंड दे आर क्लियर विद द पब्लिक, बिकॉज पब्लिक उसी पे रिलाई करके डिपॉजिट्स देने वाली है कंपनी को। समझा? तो 9th वन इज एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक। कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। द 10th वन इज अपलोड एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकती है, ईमेल भी कर सकती है। यस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सम पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस प्रोसीजर। द 11th वन इज कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। कंपनी अपने बैंकर को इन्फॉर्म करेगी कि अब एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लो। एंड द 12th स्टेप इज इशू डिपॉजिट रिसिप्ट। एप्लीकेशन मनी आने के 21 days में डिपॉजिट रेसिप्ट इशू करना पड़ेगा। The 13th step is create charge on assets. डिपॉजिट्स आने के 30 days में कंपनी has to create charge on assets. The 14th one is make entries in register of deposits. डिपॉजिट रेसिप्ट इशू करने के 7 days में, याद रखना ये सारे 21 days, 30 days, 7 days, डिपॉजिट रेसिप्ट इशू करने के लिए 7 days में डिपॉजिट के सारे डिटेल्स रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंटर होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द 5th एंड द लास्ट वन इज फाइल रिटर्न विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर साल 30 जून के पहले कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
कंपनी हैज टू मेंशन कि 31 मार्च तक उसके पास इतना या उससे ज्यादा डिपॉजिट बैलेंस है. Okay, so this were the 15 steps to accept deposits from the public. Now we will study the procedure to accept deposits from the members. This is also a 15-step procedure. Most of the process is same as collecting deposits from the public. So we will just mention the steps. अगर कुछ अलग होगा तो सिर्फ उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक के जैसे. So let's start. The first one is hold board meeting. Secretary will arrange a board meeting जिसमें सारे details finalize होंगे. The second one is hold general meeting. General meeting में shareholders का approval लिया जाएगा and special resolution pass होगा. The third one is hold board meeting. इस board meeting में circular यानी advertisement की सारी चीजें finalize होंगी. The fourth one is appoint banker. कंपनी एक बैंकर अपॉइंट करेगी टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द मेंबर्स. फिफ्थ वन इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेगी सर्कुलर में मेंशन करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करने के लिए. द सिक्स्थ वन इज अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी. डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड साइन होगा. द सेवेंथ वन इज टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी. 8 वन इज फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सर्कुलर की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल होगी. द 9th वन इज इशू सर्कुलर टू मेंबर्स. रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के 30 डेज के बाद सर्कुलर मेंबर्स को इशू करेंगे. द 10th वन इज अपलोड सर्कुलर ऑन वेबसाइट. सर्कुलर मेंबर्स को इशू करने के बाद कंपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकती है. 11th वन इज कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी. कंपनी बैंक को इन्फॉर्म करेगी टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी फ्रॉम द मेंबर्स. द 12th वन इज इश्यू ऑफ डिपॉजिट रेसिप्ट. डिपॉजिट्स आने के 21 डेज में कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रेसिप्ट. ये सारे डेज याद रखना. 21 डेज टू एक्सेप्ट to issue deposit receipt. The 13th one is create charge on asset. Deposit accept करने के 30 days में company has to create charge on assets. The 14th one is make entries in register of deposits. Deposits receipt issue करने के 7 days में उनकी entry register of deposits में करनी पड़ेगी. The 5th and the final step is return file of deposits. 31 मार्च तक कंपनी के पास जितना भी डिपॉजिट्स है उसकी डिटेल्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज को 30 जून तक सबमिट करनी पड़ेगी. समझा? आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो एंड विद द प्रीवियस आंसर ऑल्सो. एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक एंड एक्सेप्टेंस टू मेंबर्स. So here we have finished all the topics of this chapter. So I hope you have understood it everything. Yes, so thank you so much and see you soon in the next lecture.